Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start chapter 3, which is about chemical bonding. This is our first lecture. Topic of the lecture is electronegativity. There are 5 learning outcomes in this lecture. इस लेक्चर से हमारे स्टूडेंट्स ने क्या लर्न करना है? नंबर 1, they will learn that what is electronegativity, why we say that it is a power of an atom to attract the shared electron pair toward itself. Secondly, how the factors like nuclear charge, atomic radius, and shielding effect influence the values of electronegativity. Number 3, how and why the values of electronegativity vary down the group and across the period in the periodic table. Number 4, how the electronegativity difference between two elements can be used to predict the type of bond which will be found between that two atoms. And number 5, we will also relate electronegativity to the bond polarity and dipole moment. तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट को समझने के लिए सपोज कीजिए कि एक कोवल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर. As both atoms are same, therefore they will have the equal ability to attract this pair of electron. This pair of electron will revolve around the nucleus of one hydrogen atom to the same extent as the nucleus of the other hydrogen atom. यानी हम ये कहेंगे कि दोनों एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली शेयर कर रहे हैं. There will be equal electron density around the nuclei of both the atoms. No atom will possess positive or negative charge, rather than they will remain electrically neutral. ऐसा कोवल बॉन्ड दो एटम के दरमियान एक नॉन पोलर कोवल बॉन्ड कहलाता है. दिस इज नॉन कोवल बॉन्ड. इस बॉन्ड में दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जो अट्रैक्शन इक्वल है, they have same tendency to attract the shared pair of electron toward itself. But situation is different in case of HCl molecule. In HCl molecule, a covalent bond is formed by mutual sharing of 1 electron pair between hydrogen and chlorine atom. लेकिन यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हाइड्रोजन एटम की इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी या टेंडेंसी जो है वो कम है, वेयर एज tendency of chlorine atom to attract the shared pair of electron toward itself is greater. As a result of which, what will happen? Now this pair of electron will revolve around the nucleus of chlorine atom to greater extent as compared to that of hydrogen atom. That is, there will be less electron density around the nucleus of hydrogen atom. There will be more electron density around the nucleus of chlorine atom. We say that these two atoms are not sharing the electrons equally, rather than they are sharing the electrons unequally. There will be greater electron density on chlorine atom, as a result of which it will develop a partial negative charge, and due to less electron density, hydrogen atom will acquire partial positive charge. So we observe that in HCl, chlorine has greater tendency
to attract the shared pair of electron towards itself, whereas hydrogen atom has less tendency to attract the shared pair of electron toward itself. This tendency is known as the electronegativity. So we define electronegativity. It is the measure of tendency of an atom to attract the shared electron pair towards itself in a covalent molecule. And it can also be defined as that it is the ability of an atom to attract the bonding electron pair. It is the ability of an atom to attract bonding electron pair. Now let's see that how can we measure the electronegativity values, how electronegativity values were measured. Determination of electronegativity values. Now, electronegativity values cannot be determined directly, Rather than these are the relative values, these are relative values with no units. There are no units of electronegativity. These values was first of all determined by Linus Pauling. In 1930, he compared experimental values of bond energy with theoretical bond energies with for a bond between two atoms. Now, from the data obtained, he assigned an electronegativity value equal to 4 to fluorine atom and use it as a reference value
value for determination of electronegativities of other elements of atoms of other elements. So in this way he developed an electronegativity scale. In that electronegativity scale, maximum value is equal to 4 for fluorine atom and minimum value is equal to 0.7 for cesium and francium. Now all other elements possess intermediate values. All other elements possess intermediate values of इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. स्टूडेंट्स फिर एक दफ़ा देख लीजिए क्या मतलब बनता है इसका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ डायरेक्टली डिटरमिन नहीं की गई थी. इनको कैसे, ये क्या है, दे आर जस्ट relative values. These are the relative values, इसलिए इनकी कोई यूनिट नहीं होती. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइनस पॉलिंग ने 1930 में जो है ये वैल्यूज़ कैसे मालूम की. इसने दो एटम के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड की एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी को उसकी थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी से कंपेयर किया और उस डेटा की मदद से उसने फ्लोरीन एटम को मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 असाइन की और इस वैल्यू को एज रेफरेंस वैल्यू यूज़ करते हुए बाकी तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम की. तो इस तरह लाइनस पॉलिंग ने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल डेवलप किया जिसमें मैक्सिमम वैल्यू 4 है फ्लोरीन के लिए और मिनिमम वैल्यू है 0.7 सीजियम और फ्रेंसियम के लिए. बाकी तमाम एलिमेंट जो हैं उनकी वैल्यूज़ इस रेंज में लाई करती हैं, यानी लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन पॉइंट. स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं. देयर आर 3 फैक्टर. नंबर 1 इज़ द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस. नंबर 1 इज़ द atomic size or atomic radius. Radius or size. तो सपोज कीजिएगा कि ये हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है इन HF मॉलिक्यूल. दिस इज हाइड्रोजन एटम which is covalently bonded to fluorine due to mutual sharing of one electron pair. ये फ्लोरीन एटम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोवल बॉन्ड. और इस तरह हाइड्रोजन एटम ने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर म्यूचुअली शेयर किया हुआ है हाइड्रोजन एटम के साथ. और इसको आप कंपेयर कीजिए HCl मॉलिक्यूल के साथ. दिस इज हाइड्रोजन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड टू क्लोरीन एटम in HCl molecule. This is larger chlorine atom. Its nucleus, first shell, it contains 2 electrons. Second shell contains 8 electrons.
और थर्ड शेल जो है ये इसमें अब म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से इसमें भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन एटम शेयर कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि इन स्मॉल साइज एटम द न्यूक्लियस इज क्लोजर टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so there is greater nuclear force of attraction for this pair of electron। ये फ्लोरीन एटम की इस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4, whereas in chlorine the atomic size is larger। Tendency to attract the shared pair of electron in chlorine atom in the nucleus of the chlorine atom for this pair of electron will be less, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 3, क्योंकि क्लोरीन एटम लार्ज साइज है। लार्ज साइज के एटम में न्यूक्लियस जो है दिस इज लेस क्लोजर टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, there will be less force of attraction। Due to less force of attraction there will be less electronegativity of chlorine as compared to the fluorine। This value is 4 for fluorine and it is 3 for the chlorine। So smaller atomic radius, larger value of electronegativity, larger atomic radius, less value of or smaller value of electronegativity। Now the second factor is the nuclear charge। Nuclear charge is due to the number of proton present inside the nucleus of an atom। एग्जाम्पल देखिएगा, नाइट्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 7, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन। ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सपोज कीजिएगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं ये हाइड्रोजन एटम ने शेयर किए हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। दिस इज हाइड्रोजन एटम, ये शेयर्ड पेयर, ये हाइड्रोजन एटम, nucleus of hydrogen atom, the pair which is shared, and third hydrogen atom, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। आप इसको कंपेयर कीजिए ऑक्सीजन के साथ, जो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है, और ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम में, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। और सपोज कीजिए कि 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के साथ म्यूचुअली शेयर करके ये कोवल बॉन्ड बनाया है।
ये हाइड्रोजन का एटम। तो मैं एग्जांपल जो है मॉलिक्यूल की इसलिए दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डील विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। तो हमने ये देखना होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर ज़्यादा शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर in which oxygen is sharing two pair of electron for the hydrogen atom. This is the ammonia molecule. Nitrogen is sharing 3 electron pair with the 3 hydrogen atom. दोनों में नंबर ऑफ शेल्स सेम है, यानी शेल्स की डिफरेंस का नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 7 प्रोटॉन की वजह से, its ability to attract the shared pair of electron is less because it has less number of proton inside its nucleus, less nuclear charge, less electronegativity. Electronegativity is about 3, whereas in case of oxygen in water, oxygen nuclear charge ज़्यादा है. Now, nuclear force of attraction for this shared pair of electron is greater, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3.5. So, greater the nuclear charge due to greater number of proton inside the nucleus, greater will the value of electronegativity, and less the number of proton inside the nucleus as are in the nitrogen, less will be the nuclear attraction for the shared pair of electron and less will be the value of electronegativity. Now the next factor which is affecting the electronegativity is the shielding effect. Third factor, this is the shielding effect. शील्डिंग इफेक्ट जैसे आप लोग जानते हैं, इट इज द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द inner shell, the shells which are present in between the nucleus and outermost electron. आप दो एटम को कंपेयर कीजिए. फर्स्ट इज द सोडियम एटॉमिक नंबर 11, its first shell 2 electrons, second shell 8 electrons, and third shell 1 electron. It is first shell, second, and this is the third shell. Now compare it with the potassium. Potassium atomic number 19, first shell 2 electrons, second shell 8 electrons, third shell 8 electrons, and fourth shell 1 electron. This is first shell, second shell, third shell and fourth shell. सोडियम में आप ऑब्जर्व कीजिए कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान 2 इंनर शेल्स हैं, जबकि पोटाशियम में न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान 3 इंनर शेल्स हैं. तो इस तरह जो शील्डिंग इफेक्ट सोडियम में कम होगा, पोटाशियम में ज़्यादा होगा.
ये जो टू शेल्स हैं, ये न्यूक्लियस की, सोडियम न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लेस जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, whereas there is greater decrease in the nuclear force of attraction for outermost electron in case of potassium due to the three inner shells. तो लेस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इट इज इक्वल टू 0.93, और ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से पोटाशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इट इज इक्वल टू 0.82। इसको आप फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको समझाई वहां से भी आप समझ सकते हैं कि एचएफ में मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज possesses greater electronegativity, and chlorine due to larger atomic radius it possess less electronegativity। या फ्लोरीन में भी आप देख सकते हैं कि जो shielding effect है, it is due to the presence of one inner shell, whereas in chlorine the shielding effect is due to two inner shells। तो टू इनर शेल की वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, और जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन अट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन एटम फॉर द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और यहाँ पे लेस शील्डिंग इफेक्ट है। तो फ्लोरीन एटम की शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी डिक्रीज नहीं होगी, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स which affect the electronegativity। they are atomic size or atomic radius। हमने एग्जाम्पल दी HF और HCl की, और उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। ये एग्जाम्पल मैंने दी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन इन अमोनिया मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल। एंड थर्ड इज द शील्डिंग इफेक्ट, ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट लेस विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वाइस वर्सा। इसकी एक एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और पोटाशियम एटम की, और दूसरी एग्जांपल जो है वो मैंने फ्लोरीन और क्लोरीन की कोट की। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स विच इफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करती हैं अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड, across the period। across the period इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीज करती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीज करती हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, elements of third period are sodium atomic number 11, electronegativity 0.93, magnesium atomic number 12, electronegativity 1.31, aluminium atomic number 13, electronegativity 1.61, silicon atomic number 14, electronegativity 1.90, phosphorus atomic number 15, electronegativity 2.10, sulfur atomic number 16, electronegativity is 2.58, and chlorine
atomic number 17, electronegativity more precisely is 3.16. अक्रॉस द पीरियड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज कर रही हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रीजन. नाउ electronegativity values are increasing across the period due to number 1, increase in effective nuclear charge, increase in effective nuclear charge. अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिसकी वजह से एक एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीज करेंगी. दूसरा जो फैक्टर है, दिस इज डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस और साइज. एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से एक एटम के न्यूक्लियस से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोजर होते जाएंगे और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है शेयर्ड पेयर के लिए वो इंक्रीज होती जाएगी. एंड थर्ड फैक्टर कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, नो शील्डिंग इफेक्ट. No shielding effect means कि number of shells remain same across the period. तमाम इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ऐड होते हैं. और अब हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज कैसे वेरी करती हैं. सो वेरिएशन डाउन द ग्रुप, variation of electronegativity values down the group. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज करती हैं. मिसाल के तौर पे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आप देखिएगा. ग्रुप 17 या ग्रुप 7A जिसको कहते हैं, दे आता हेलोजन फैमिलीज. फ्लोरीन इट इज 4, क्लोरीन इट इज 3, ब्रोमीन इट इज 2.8 and iodine it is 2.5. तो डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो डिक्रीज कर रही हैं, इसमें जो फर्स्ट रीजन है, दिस इज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस due to increase in the number of shells, increase in the number of shells. down the group shells increase करने से atomic size increase होता है. larger size में nuclear attraction for shared electron pair decrease करती हैं, इसलिए electronegativity values down the group increase करेंगी. and number 2 is increase in shielding effect, increase in shielding effect. तो नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीज होंगे विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा और इसी के साथ जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये डिक्रीज होगा. तो इन 3 फैक्टर की बेस पर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज करेंगी. डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक एप्लीकेशन ये है
कि अगर हमें दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ मालूम हों तो उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम ये मालूम कर सकते हैं कि इन दो एटम के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा, पोलर कोवल बॉन्ड बनेगा या नॉन पोलर कोवल बॉन्ड बनेगा। तो हम इसमें सिलसिले में फर्स्ट केस देखते हैं। नंबर 1, if electronegativity difference is 0 to 0.4, ऐसी सूरत में दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इट विल बी नॉन पोलर कोवेलेंट। ऐसा बॉन्ड या तो सिमिलर एटम के दरमियान बनेगा, लाइक 2 हाइड्रोजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम्स एटसेट्रा। तो हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 से 0.4 तक का हो तब भी बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होगा। फॉर एग्जांपल, इन द इथाइलिन मॉलिक्यूल electronegativity difference between carbon and hydrogen, this is 2.2 hydrogen and 2.5 carbon, electronegativity difference this is equal to 2. Carbon is 2. Exact value of carbon, this is 2.5, this is 0.3 और ये 0.3 जो है वो 0.4 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान बन रहा है इट इज आल्सो नॉन पोलर कोवेलेंट। सेकंड केस देखिएगा कि अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से 1.8 तक फॉल करती है तो ऐसी सूरत में दो एटम के दरमियान पोलर कोवल बॉन्ड बनेगा। नंबर 2, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is 0.4 to 1.8, then bond formed will be polar covalent। एग्जाम्पल देखिएगा HCl मॉलिक्यूल की। In HCl, electronegativity of hydrogen is 2.2 and chlorine is 3.16. Electronegativity difference, this is equal to 3.16 minus 2.2, so it is equal to 0.96. So 0.96 lies in between 0.4 and 1.28, therefore bond is polar covalent। थर्ड केस देखिएगा कि if electronegativity difference is 1.8 or more, then bond formed between the two atoms will be ionic। एग्जाम्पल देखिएगा कि इन पोटाशियम क्लोराइड, potassium electronegativity is 0.82, chlorine is 3.16,
electronegativity difference, this is equal to 2.34, which is greater than 1.8, so bond is ionic. एग्जाम्पल देखिएगा सोडियम क्लोराइड की. सोडियम electronegativity is 0.93, chlorine is 3.16. electronegativity difference is equal to 2.23. So again it is greater than 1.8, so bond is ionic. तो इस तरह दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की मदद से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दो एटम के दरमियान नॉन पोलर कोवल बॉन्ड बनेगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से 0.4 तक हो. दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवल बॉन्ड होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से 1.8 तक लाई करती है, और दो एटम के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 हो. डियर स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट लर्निंग आउटकम है कि हाउ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्लेन द बॉन्ड पोलैरिटी एंड द डायपोल मोमेंट. आपने ये लर्न करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की मदद से हमें कैसे पता चलेगा कि एक कोवल बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर. तो सबसे पहले हम नॉन पोलर कोवल बॉन्ड देखते हैं. सपोज कीजिए कोवल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स लाइक हाइड्रोजन एटम. दिस कोवल बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम. क्योंकि दोनों एटम सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, इसलिए दोनों एटम की इस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम होगी. दोनों एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, या यूं कह लीजिए कि दोनों हाइड्रोजन एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली शेयर करेंगे. इक्वल शेयरिंग का मतलब ये भी बनता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम के न्यूक्लियस के गिर्द भी उतना ही रिवॉल्व करेगा जितना दूसरे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेगा. एज अ रिजल्ट ऑफ विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम विल रिमेन सेम. बोथ द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड सच टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी नोन एज द नॉन पोलर कोवल बॉन्ड. तो नॉन पोलर कोवल बॉन्ड कब बनता है? अगर बॉन्डेड एटम सिमिलर हों, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो अगर ज़ीरो हो और या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 से 0.4 तक रेंज करती है. तो बॉन्डेड एटम रिमेन electrically neutral. So what is a non-polar covalent bond? A covalent bond formed by equal sharing of one or more electron pairs between the similar atoms or the atoms having electronegativity difference about 0 between 0 to 0.4. जी बेटा, अब हम देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय पोलर कोवल बॉन्ड. पोलर कोवलेंट bond. What is a polar covalent bond?
एग्जाम्पल जरा देखिएगा कि अ कोवल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम। दिस हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, क्लोरीन एटम ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है। दिस इज फॉर्मिंग अ पेयर विच इज म्यूचुअली शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग अ सिंगल कोवल बॉन्ड। हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दो एटम के दरमियान। लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके मुकाबले में कम है। इट इज 2.2 एंड इट इज 3.16। सो क्लोरीन विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ टू ग्रेटर एक्सटेंट टुवर्ड इटसेल्फ। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस के गिर्द ज्यादा रिवॉल्व करेगा। There will be more electron density around the nucleus of chlorine atom as compared to the nucleus of hydrogen atom. Such type of sharing is known as unequal sharing of electron pair, and as a result of this unequal sharing, the more electronegative atom will acquire partial negative charge and less electronegative atom will possess partial positive charge. Such type of bond is known as the polar covalent bond, और इस पोलर कोवल बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की अपीयरेंस आयनिक करेक्टर ऑफ द कोवल बॉन्ड कहलाती है। सो अ कोवल बॉन्ड, अ कोवेलेंट बॉन्ड formed by unequal sharing of electron pairs between the atoms having electronegativity difference of 0.4 to 1.8 is known as the polar covalent bond, and this appearance of positive and negative charges on the covalently bonded atom is known as ionic character of covalent bond। क्योंकि जो एक आयनिक बॉन्ड में बॉन्डेड एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, और अगर एक कोवल बॉन्ड में बॉन्डेड एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे तो ये आयनिक कैरेक्टर होगा। आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज द अपीयरेंस ऑफ partial positive and partial negative charges on the covalently bonded atom, covalently bonded atoms, due to unequal sharing of electron pairs is known as ionic character of covalent बॉन्ड। और इस आयनिक करैक्टर की वजह से एक पोलर कोवल बॉन्ड नॉन पोलर कोवल बॉन्ड की निस्बत स्ट्रांगर होगा, क्योंकि पोलर कोवल बॉन्ड के दरमियान टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड सेकंड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। तो डुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से चुके हैं कि कोवल बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स,
they are non-polar covalent bond, non-polar covalent bonds, and second are the polar covalent bonds. नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है या 0.04 कह लीजिए, या सिमिलर केसेस में जो है वो 0 होगी सिमिलर एटम में। पोलर कोवलेंट बॉन्ड ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये 0.4 से 1.8 तक लाई करता है। तो अब जो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, नॉन पोलर हो गया, लेकिन अगर जो है वो बॉन्ड जो है वो पोलर है तो उसकी पोलैरिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रेंज लाई कर रही है 0.4 से 1.8। अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस, then the bond will be less polar. Covalent bond, this is less polar. And if electronegativity difference is greater, then the covalent bond will be more polar. Covalent bond more polar. मिसाल के तौर पे HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो सबसे जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 और फ्लोरीन की 4 है, एज कंपेयर टू HCl जिसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होगी और HBr में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उससे कम होगा, हाइड्रोजन 2.2, ब्रोमीन 2.8 और आयोडीन जो है इसमें पोलैरिटी सबसे कम होगी, Hi 2.2 और ये 2.5। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये कितना आ गया, इट इज़ इक्वल टू 0.3, यहाँ पे 0.6 आ गया, यहाँ पे जो है ये 0.8 आ गया, और जो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये 1.8 आ गया, इट इज इक्वल टू 1.8। सो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर विल बी द पोलैरिटी इन द बॉन्ड। अब ये क्वेश्चन अराइज करता है कि हम किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को कैसे जाहिर करते हैं। तो पोलैरिटी को बेटे जाहिर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट is the quantitative measure of, it is the quantitative measure of degree of polarity, in a मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज़्यादा है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, अगर पोलैरिटी कम है तो डाइपोल मोमेंट कम होगी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए
डायपोल मोमेंट जिसको हम म्यू से जाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी यूनिट डी बाई 0 डी बाई। जबकि पोलर मॉलिक्यूल के लिए, फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स आर पोलर कंपाउंड, डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन 0। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी डायपोल मोमेंट की, उतनी ही ज्यादा इसमें पोलैरिटी होगी। Now dipole moment is quantitatively is equal to the product of charge Q on one of the bonded atoms and distance between them. SI unit of dipole moment is coulomb meter. It is coulomb meter, जिसको हम CM से एब्रीविएट करते हैं। वेयर एज कॉमन यूनिट, दिस इज डी बाई, इसको हम डी से ज़ाहिर करते हैं। रिलेशनशिप इज 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर। सपोज कीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है HX, आप इसकी डायपोल मोमेंट मालूम करना चाहते हैं। हाइड्रोजन एंड X, दे पोजेस यूनिट पॉजिटिव एंड यूनिट नेगेटिव चार्ज and they are separated by a distance of 0.92 angstrom. 0.92 angstrom mean 0.92 into 10⁻⁻10 meter. This is the value of R, the distance. Now unit positive or unit negative charge represented by Q, it is equal to 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो डायपोल मोमेंट म्यू जो है ये किसके बराबर हो गया? इट इज़ इक्वल टू Q इंटू R, इट इज़ इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब मल्टीप्लाइड बाई R इज़ इक्वल टू 0.92 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास है 1.473 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर। तो अगर आपने इस कूलम्ब मीटर को डी बाई में कन्वर्ट करना है तो 1.473 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर को डिवाइड कर लीजिए 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर से। दिस कम टू बी इक्वल टू 4.4 डी बाई। इस तरह इस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट ये होगी। तो एक दफ़ा फिर देख लीजिए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट मोर विल बी द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड वाइस वर्सा। जी स्टूडेंट्स, तो अगर आपके पास एक डाई एटॉमिक जो है मॉलिक्यूल है विच इज़ आल्सो हेटेरो एटॉमिक लाइक पोलर HF, HCl, HBr और HI, तो ये पोलर मॉलिक्यूल हैं। ये हमेशा डायपोल मोमेंट पोजेस करेंगे ग्रेटर देन 0, और यानी ये हमेशा इनमें पोलैरिटी पाई जाएगी। तो HF में डायपोल मोमेंट की वैल्यू 1.78 डी बाई, किस वजह से? ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एंड ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। HCl में 1.03 डी बाई ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और लेस पोलैरिटी। HBr के लिए ये वैल्यू 0.78 डी बाई due to even less polarity or less electronegativity difference।
और एच आई में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0.38 बाई लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आर लीस्ट पोलैरिटी। डियर स्टूडेंट, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी इसको हम एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर से जाहिर करते हैं। दिस इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर। इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर की जो वैल्यू है ये इसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी और इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज एंड से नेगेटिवली चार्ज एंड की तरफ होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा पोलर बॉन्ड हैं तो वो मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। इसकी आप एग्जाम्पल देखिएगा। ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। नंबर 1 ज्योमेट्री और सेकंड से ओवरऑल डाइपोल मोमेंट। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल देखिए। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ 2 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दे आर वाटर and carbon dioxide. Water is polar with dipole moment of 1.84 dBi. Carbon dioxide is non-polar with dipole moment of 0 dBi. This is non-polar. And water is polar. अब इसकी क्या रीज़न है? मैंने आपको बताया कि इसकी रीज़न जो है वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट पर डिपेंड करती है। तो वाटर जो है ये एंगुलर स्ट्रक्चर पोजेस करता है। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। इसके अंदर 2 डाइपोल मोमेंट वेक्टर पोजेस करते हैं विच आर डायरेक्टेड फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। ये 2 डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट नहीं है। ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। दे गिव द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.84 dBi। ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की। कार्बन डाइऑक्साइड इसके कंपैरिजन में एक लीनियर मॉलिक्यूल है। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। 2 पोलर बॉन्ड्स इन कार्बन डाइऑक्साइड मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। ये दोनों एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट वेक्टर को कैंसिल करेंगे गिविंग द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ 0 dBi। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों में 2 पोलर कोवल बॉन्ड हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की लीनियर ज्योमेट्री की वजह से ये 2 डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे गिविंग द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ 0 dBi। Molecule will be non-polar, whereas in a case of water, due to angular geometry, the 2 dipole moment vector cannot cancel each other. They will give the resultant dipole moment of 1.84 on adding, hence it will be polar. तो एक मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड जो हो सकते हैं तो वो ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर भी हो जाएगा, नॉन पोलर भी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट वेक्टर वो ऐड अप होते हैं या एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। एक एग्जांपल और देखिएगा, ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। ये है BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड।
बोरान ट्राइफ्लोराइड में 3 डायपोल मोमेंट वेक्टर which are directed from positive boron to negative fluorine. These 3 dipole moment vectors are equal in magnitude, opposite in direction. They will cancel each other, giving the resultant dipole moment of 0 d by. Whereas in case of ammonia NH3, the structure is triangular pyramid. Three dipole moment vectors which are directed from hydrogen to nitrogen. These 3 dipole moment vector now will not cancel each other and add up to give the resultant dipole moment of 1.46 dB. Hence it is polar. तो इस तरह डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट जो है वो ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है. A molecule, a compound may be polar or non-polar, although both possess the polar covalent bond. और जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है और ओवरऑल डायपोल मोमेंट पर. डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको हम रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ इट इज़ मेजर्ड. सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच इफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. थर्ड क्वेश्चन, describe the effects of following factors on the electronegativity of an element. They are atomic radius and nuclear charge. Now फोर्थ क्वेश्चन की नंबरिंग दोबारा 1 से शुरू हो गई है. डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज अक्रॉस द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी can predict the nature of bond which is formed between two atoms. Differentiate between polar and non-polar covalent bond. What is dipole moment? How its values are determined. How the polarity of a molecule can be determined with the help of its dipole moment. Why water is a polar whereas carbon dioxide is non-polar molecule, although both are the triatomic molecule. Why ammonia is polar whereas BF3 is non-polar, although both are the tetraatomic molecule. तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपका ये लेक्चर अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएगा. अल्लाह हाफिज़.